آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ عازمین حج کے لیے اہم اطلاع، دوسری قسط کی ادائیگی کی آخری تاریخ میں توسیع۔ کے ٹی آر کو ملی عدالت سے راحت، اے سی بی کیس میں گرفتاری کی کارروائی میں توسیع۔ نشہ ہی نشہ، شراب پی کر وائن شاپ میں سو گیا چور، ضلع میدک میں عجیب و غریب واقعہ۔ محبوب آباد میں شیر کو پکڑنے خصوصی ٹیموں کی تشکیل، نرمل ضلع میں بھی شیر کی موجودگی سے سنسنی۔ اور حیدرآباد میں 2 مقامات پر آتش زدگی کے واقعات، کنڈا پور کے فلیٹ اور بالاپور کے گودام میں لگی بھیانک آگ۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ غزہ سے تعلق رکھنے والے 4 فلسطینی قیدی اسرائیلی جیلوں میں دم توڑ گئے۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے قیدیوں کے امور کے کمیشن اور قیدی کلب نے پیر کو یہ اطلاع دی۔ دونوں تنظیموں کی طرف سے جاری کردہ ایک مشترکہ پریس بیان میں 4 قیدیوں کی موت کی تصدیق کی گئی ہے۔ امریکی اور برطانوی جنگی طیاروں نے ایک بار پھر مغربی یمن کے الحدیدہ صوبے پر حملہ کیا، جو جزوی طور پر شیعہ تحریک انصار اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ امریکی اور برطانوی جنگی طیاروں نے الحدیدہ صوبے کے جنوب میں واقع عمارتوں پر 2 حملے کیے۔ تائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے ایک ہوٹل میں آگ لگنے سے 3 افراد جھلس کر ہلاک اور 7 دیگر جھلس کر زخمی ہو گئے۔ مقامی فائر ڈپارٹمنٹ نے منگل کو یہ اطلاع دی۔ اطلاعات کے مطابق آگ اتوار کو مقامی وقت کے مطابق رات 9:21 پر بینکاک کے ایک مشہور بیک پیکر علاقے کھاؤسان روڈ کے قریب ایک بلند و بالا ہوٹل میں لگی تھی۔ عازمین حج کی سہولت اور عوام کے مطالبے پر حج کمیٹی آف انڈیا نے ویٹنگ لسٹ میں منتخب عازمین حج کے لیے حج اخراجات کی پہلی اور دوسری قسط کے طور پر 2,72,300 روپے جمع کروانے کی تاریخ میں 6 جنوری تک توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیٹی کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق قرعہ اندازی میں پہلے سے منتخب ہونے والے عازمین حج 6 جنوری تک 1,42,000 روپے کے حج اخراجات کی دوسری قسط بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ سرکولر میں عازمین حج سے اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی اپیل کی گئی ہے۔ دہلی کی چیف منسٹر آتشی نے کرول باغ علاقے میں گرودوارے کا دورہ کیا۔ اپنے دورے میں وزیر اعلیٰ نے گرودوارے کی گرنتھیوں کو عام آدمی پارٹی حکومت کے حال ہی میں اعلان کردہ ماہانہ اعزازیہ کے رجسٹریشن کروایا۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ آتشی نے وسطی دہلی میں سنت سوجن سنگھ مہاراج گرودوارہ میں حاضری دی۔ عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے پیر کو اعلان کیا کہ اگر ان کی پارٹی دہلی میں دوبارہ منتخب ہوتی ہے تو وہ ایک پجاری گرنتھی سمان یوجنا شروع کرے گی، جس میں ہندو مندر کے پجاریوں اور گرودوارے کے گرنتھیوں کو 18,000 روپے ماہانہ الاؤنس دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ گرنتھی سمان یوجنا جو دلی کے لوکپریہ نیتا اروند کیجریوال جی نے جس کی کل گھوشنا کری تھی، آج اس کی رجسٹریشن کی شروعات اروند کیجریوال جی نے جو کناٹ پلیس کا ہنومان مندر ہے وہاں سے شروع کری، اور آج یہاں پہ جو سنت سجان سنگھ جی مہاراج جو گرودوارہ ہے سجان سنگھ پارک میں، آج اس کی شروعات گرنتھیوں کی رجسٹریشن کی یہاں پر ہم نے آج شروعات کی ہے۔ ابھی جب گرنتھیوں کا رجسٹریشن ہو رہا تھا تو جو سب گرنتھیوں نے ہمیں آشیرواد دیا، اروند کیجریوال جی کو آشیرواد دیا اور یہ کہا کہ شاید مہاراجا رنجیت سنگھ جی کے سمے کے بعد پہلی بار کوئی ایسی سرکار آئی ہے جس نے گرنتھیوں کے بارے میں سوچا ہے۔ دیکھیے، چاہے پجاری ہو مندر میں، چاہے گرودوارے میں گرنتھی ہو، سماج کے ہر سکھ دکھ میں، پریوار کے ہر سکھ دکھ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے پریوار میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پجاری یا گرنتھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے بزرگ گزر جاتے ہیں اور ہم ان کی چتا پر آگ لگا رہے ہوتے ہیں تب پجاری اور گرنتھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب پجاری اور گرنتھی
जीवन के हर सुख दुख में हमारे साथ हैं, तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी भी देख रेख सरकार करे। और इसीलिए ये पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है। जब दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, तो इस योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिल्ली के हर पुजारी को दी जाएगी, हर ग्रंथी को दी जाएगी। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने महाराष्ट्र के वजीर और बीजेपी रुकन असेंबली नीतीश राणे की जानिब से जुनूबी रियासत को मिनी पाकिस्तान कहने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये गहरी बदनीयती पर मबनी बात है। राणे की मजम्मत करते हुए केरला के वजीर आला ने कहा कि इनके रिमार्क सरासर काबिल मजम्मत हैं और उन्होंने वजीर की बयानबाजी को केरला के खिलाफ संघ परिवार की तरफ से शुरू की गई नफरत अंगेज मुहिम का हिस्सा करार दिया। पिनाराई विजयन ने दावा किया कि केरला सेकुलरिज्म और फिरका वाराना हम आहंगी का गढ़ है। हरियाणा के भिवानी जिले में एक 22 साल दलित खातून ने मुबैना तौर पर फीस की रकम न होने की वजह से इम्तिहान में शिरकत का मौका न मिलने के बाद फांसी ले ली। फरतिया भीम गांव से ताल्लुक रखने वाली दीक्षा को एक प्राइवेट कॉलेज में इसके 5वें सेमेस्टर के इम्तिहानात में शिरकत करने से रोक दिया गया था, क्योंकि इसकी बकाया फीस 35,000 रुपए अदा नहीं की गई थी। तालीमी साल के वाजिबात भी इसमें शामिल थे। इसके वालिद जगदीश ने बताया कि उसने कॉलेज के हुक्काम से फीस की अदायगी के लिए तौसी की अपील की थी, लेकिन उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। रियासती काबीना का इजलास 4 जनवरी 2025 को मुनक्किद होगा। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदरत सेक्रेटरिएट में 4 बजे शाम मुनक्किद होने वाले इस काबीनी इजलास में कई अहम फैसलों की तवक्कुआत की जा रही हैं। ज़राया ने बताया कि ऐन मुमकिन है कि इस इजलास के दौरान तेलंगाना के अवाम के लिए साल नौ के तोहफे के तौर पर कई वादों पर अमलावरी का ऐलान किया जा सकता है, जिनमें नए राशन कार्ड्स की इजराई का वादा भी शामिल है, जिसका एक तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। किसानों की माली इमदाद, बीसी तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर उमूर पर भी ऐलानात का इम्कान है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर एस मधुसूदनाचारी ने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए शिकायत की। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को क़रार पेश करने का काउंसिल को मौका फराहम नहीं किया गया, जो हाल ही में चल बसे। उन्होंने कहा कि इंतहाई अफसोस की बात है कि साबिक वज़ीर आज़म हिंद को काउंसिल में क़रार अदा करने की हुकूमत ने सहूलत फराहम नहीं की। साबिक वज़ीर और बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले गुरुकुल स्कूल्स में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात का इयादा और तुलबा को दरपेश मुश्किलात को रोकने के लिए रियासती हुकूमत के नाक़िस इक़दामात पर सवाल उठाए। रामाराव ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें तुलबा ने बताया कि खाने के मुतालबे पर इन्हें गुरुकुल स्कूल में भिखारी कहा जाता है। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मुनक्किद होने वाले नेशनल रोड सेफ्टी प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने आज महकमा ट्रांसपोर्ट और आरटीसी के ओहदेदारों के साथ जूम मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि आए दिन पेश आने वाले सड़क हादसात को रोकने के लिए रोड सेफ्टी प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर मुनक्किद करते हुए आवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाए। फार्मूला ई कार रेस के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के दर्ज करदा केस को कलअदम करार देने के लिए साबिक वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क और कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति तारक रामाराव तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। उनकी जानिब से दरख्वास्त दाखिल की गई है, जिस पर समाअत मुकम्मल हो गई। अदालत ने इस दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज कर दिया और पुलिस को हिदायत दी कि फैसला सुनाए जाने तक दरख्वास्त गुजार यानी तारक रामाराव को गिरफ्तार न करे। हाई कोर्ट ने जो साबिक वजीर को गिरफ्तार न करने के लिए कबल जो अहकाम जारी किए थे उसमें तौसी कर दी है। मोहम्मद असदुल्ला सीईओ बोर्ड ने आज तेलंगाना उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी का जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और साबिक वजीर दाखिला के दफ्तर में बहैसियत पीएस खिदमत अंजाम दी है। जनाब मोहम्मद असदुल्ला एक ईमानदार और दियानतदार ओहदेदार हैं। उन्होंने जायजा हासिल करने के बाद उर्दू एकेडमी के ओहदेदारान और अरकान के अमले को उर्दू जबान
वदत की तरक्की के सिलसिले में पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने की हिदायत दी। इस मौके पर मिस्टर वी कृष्णा, असिस्टेंट डायरेक्टर तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने मोहम्मद असदुल्ला का खैर मुकद्दम किया और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने संक्रांति के मौके पर 6,432 खुसूसी बसों को चलाने का फैसला किया है, जिनमें 557 सर्विसेज के लिए एडवांस रिजर्वेशन की सहूलत फराहम की गई है। गुज़िश्ता साल संक्रांति के मौके पर 4,484 खुसूसी बसों को चलाने का मंसूबा तैयार किया गया था। ताहम मुसाफिरीन के हुजूम को देखते हुए 5,246 बसों को चलाया गया। गुज़िश्ता साल के तजुर्बे को नजर में रखते हुए इस साल 6,432 बसों को चलाने का फैसला किया गया है। ये खुसूसी बसें 9 जनवरी तक 15 जनवरी तक चलाई जाएंगी। रियासती वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि कारपोरेट तर्ज पर सब रजिस्ट्रार की दफातर की इमारतें तामीर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रियासत के कई सब रजिस्ट्रार के दफातर किराए की इमारतों में चल रहे हैं। जाती इमारतों को मरहलेवारी असास पर तामीर किया जाएगा और ये दफातर कारपोरेट तर्ज पर तैयार किए जाएंगे। उन्होंने सेक्रेटरीट में अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, संगारेड्डी के जिला कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। तेलंगाना के जिले निर्मल के दिलावरपुर मंडल के मुस्तकर में कौमी शाहरात 61 पर तेंदुए की नजर आने से गाड़ी चलाने वालों और मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। गाड़ी सवारों ने बताया कि दिलावरपुर मंडल हेडक्वार्टर के करीब तेंदुए ने कौमी शाहरा को अबूर किया। गाड़ी सवारों ने अपने मोबाइल फोन से जंगली जानवर की वीडियो रिकॉर्ड की। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 14 दिसंबर को एक तेंदुए ने आदिलाबाद जिले के देदरा गांव में जंगल के किनारे खातून पर हमला करते हुए उसे हलाक कर दिया था। शराब की दुकान में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ चोर शराब पीकर वहीं सो गया, जिसके नतीजे में वो पकड़ा गया। यह अजीबोगरीब वाकया तेलंगाना के जिले मेदक के नारसिंगी की शराब की दुकान में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ये चोर चोरी के लिए रात देर गए दुकान में दाखिल हुआ। इसने दुकान में रखी नकद रकम के साथ साथ शराब की बोतलों की चोरी कर ली। इस दौरान उसने एक शराब की बोतल खोलकर शराब पी ली। हालत नशा में होने की वजह से उसको नींद आ गई और वो वहीं रात भर सो गया। अगले दिन दुकान मालिक जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चोर दुकान में पड़ा हुआ है और रकम की चोरी भी की गई है। इसने फौरी इसकी तस्वीर सेलफोन कैमरे में कैद कर ली और पुलिस को मुतल्ला किया, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच गई और उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। भुवनगिर जिले के नारायणपुरम मंडल मुस्तकर के एससी हॉस्टल में रात कयाम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिला कलेक्टर हेमंत राव ने इस हॉस्टल में रात में शब बसरी की और तुलबा को पेश की जाने वाली ग़िज़ाई अशिया का जायजा लिया। उन्होंने तुलबा से बातचीत की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। 10वीं जमात के तुलबा के लिए हॉस्टल से स्कूल के फासले की वजह से अतिया दहंदगान की मदद से 15 तुलबा को साइकिलें फराहम की गईं। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में शेर को पकड़ने के लिए महफूज जंगलात के अहदेदारों की 5 टीमें तश्कील दी गई हैं। जिले के कोनापुरम जंगलाती इलाके में शेर की मौजूदगी में सनसनी पैदा कर दी। शेर के पंजों के निशानात का पता चला, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए और उन्होंने महकमे जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की कि इनकी जान बचाई जाए। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि कुत्तागुडम गंगा जंगलात में शेर मौजूद है, जिसको पकड़ने के लिए 5 टीमें तश्कील दी गई हैं। हल्ता असेंबली कोरंगल के तहत बुमरासपेट पुलिस ने रोटी बंडा तांडा में कांग्रेस लीडर ए शेखर पर हमले के केस के सिलसिले में बीआरएस के साबिक रुकने असेंबली पी नरेंद्र रेड्डी को 2 जनवरी को रूबरू हाजिर होने के लिए नोटिस जारी की है। पीर की शब नोटिस जारी की गई, जिसमें बीआरएस के साबिक रुकने असेंबली को तहकीकाती ओहदेदार के रूबरू पेश होने की हिदायत दी गई। इस केस के सिलसिले में पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए नरेंद्र रेड्डी ने जमानत तक गिरफ्तारी हासिल कर ली है। हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में हेड्रा के अहदेदारों ने भागीरथम्मा तालाब की एफटीएल और बफर जोन में तामीर करदा गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया। काजागुड़ा सर्वे नंबर 18 एफटीएल बफर जोन के 9 एकड़ में 7 घंटे में गैर कानूनी तामीरात का पता चलाया गया, जिसके बाद हेड्रा के अमले की जानिब से 20 से ज्यादा दुकानों को मुनहदम कर दिया गया। मुकामी अफराद की शिकायत के बाद पुलिस की भारी नफरी के दरमियान गैर मजाज तामीरात को मुनहदम करने की कार्रवाई की गई।
కొట్టినకే ఎవరైనా నోటీస్ ఇచ్చిందా నిన్న ఇచ్చి వాళ్ళు తీసేస్తున్నాడు 24 గంటల మొదటి దగ్గరికి ఇచ్చిండా అలా అయితే అక్కడ ఇవ్వాలి మరి అవన్నీ పీకాలి అక్కడ పీకాలి ఎన్ని పీకట్లేదు అంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాడు సార్ शहर हैदराबाद के नवाही इलाके बालापुर की बिस्मिल्लाह कॉलोनी में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये आग लग गई। प्लास्टिक और दीगर अशिया होने की वजह से आग तेजी के साथ फैलती गई, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए और उन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी। बादशाह फायर इंजन के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये में किसी भी तरह की जानी नुकसान या किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। बिस्मिल्लाह कॉलोनी का कोताबट के पीछे गए आग लगी थी फैक्ट्री में गया हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में मंगल की शाम भयानक आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जहां राजा राजेश्वरी कॉलोनी में वाक़ गैलेक्सी अपार्टमेंट के फ्लैट में आग लग गई। बताया गया है कि अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल की एक फ्लैट में अचानक आग भड़क उठी। अपार्टमेंट के दीगर फ्लैट्स में मुकीम अफराद ने उसकी निशानदेही करते हुए फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। तब तक आग सारी फ्लैट को अपनी लपेट में ले चुकी थी। इस दौरान एक धमाका भी हुआ और तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले ने आग बुझाने का काम किया। तकरीबन 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि जिस फ्लैट में आग लगने का वाकया पेश आया, इसमें कोई भी मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। आज़मीन हज के लिए अहम इत्तला, दूसरी किस्त की अदायगी की आखिरी तारीख में तौसी। केटीआर को मिली अदालत से राहत, एसीबी केस में गिरफ्तारी की कार्रवाई में तौसी। नशा ही नशा, शराब पीकर वाइन शॉप में सो गया चोर, जिले मेदक में अजीबोगरीब वाकया। महबूबाबाद में शेर को पकड़ने खुसूसी टीमों की तश्कील, निर्मल जिले में भी शेर की मौजूदगी से सनसनी। और हैदराबाद में 2 मकामात पर आतिशबाजी के वाकयात, कोंडापुर के फ्लैट और बालापुर के गोदाम में लगी भयानक आग। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।